Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fiaz Karimi and I hope you guys are taking very good care of yourself in this desperate situation of COVID-19. हम यहाँ पर मौजूद हैं फिज़िक्स का जो ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम आपका चल रहा है अल-नूर का, उसकी डिस्कशन के लिए। उसका जो टेस्ट है लास्ट डे आप लोगों का हुआ, दैट वाज ऑफ चैप्टर 1, 2, 3 and 4 ऑफ योर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। उस पेपर की डिस्कशन के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एंड लेट्स मेक दिस अ प्रोडक्टिव डिस्कशन। MCQs की तरफ बढ़ रहा हूँ, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले MCQs को डिस्कस करते हैं। जो पहली MCQ थी दैट वाज द रेशो millimeter over kilometer is equivalent to millimeter over kilometer. We all know that millimeter is prefix, that is 10 raised to power minus 3 and kilometer is 10 raised to power 3. ये जो 10 raised to power 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 raised to power minus 3 ये भी पावर आ जाएगी और ओवरऑल it will become as 10 raised to power minus 6. So the answer will be 10 raised to power minus 6. MCQ number 2. In order to measure a physical quantity, a proper standard is chosen. An ideal standard should have. This MCQ is more type of a general knowledge MCQ than a technical one. We all know कि एक standard कहते ही उसे हैं जिसके साथ आपने किसी physical quantity को measure करना होता है. So what is the important thing regarding a standard? एक स्टैंडर्ड अगर खुद चेंज होने वाला हो या वो खुद अवेलेबल ना हो तो उसके साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है? सो एन आइडियल स्टैंडर्ड मस्ट बी इनवेरिएबल एंड इट मस्ट बी एक्सेसिबल, यानी ये इजीली अवेलेबल भी हो और ये डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस या दूसरी कंडीशंस के साथ चेंज ना हो सके। सो द आंसर इज इनवेरिएबल एंड एक्सेसिबल। MCQ number 3. The unit of energy in terms of base units is. We all know that energy is actually the ability to do work. It means कि हम work के फार्मूले को यूज करते हुए एनर्जी in terms of base units कैलकुलेट कर सकते हैं। The formula यानी means जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है। We know that the formula of the work is F dot D and the unit of force is Newton and the unit of displacement is meter. So it will become as Newton meter. We all know that Newton is kilogram meter per second square, and where from I have deduced this? We know that F is equal to ma, Newton's second law. So 1 Newton will be equal to किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे, ये मीटर वैसे ही है साथ। सो ओवरऑल इट विल बिकम एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो द आंसर इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ number 4. What will be the weight of a 20 kg object on the surface of Earth? The mass is given as 20 kg. The value of g on the surface of Earth is 9.8 meter per second square. We know that the formula of the weight is W is equal to mg. By putting the values of mass and g, which is 20 and 9.8, we get the value 196 and the unit of weight is Newton. So the value of the weight for a 20 kg object on the surface of Earth will be 196 Newton. नेक्स्ट, अ नल वेक्टर हैज, आपकी बुक का वर्ड है, वहां पर लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है। नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, फर्जी डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी। MCQ number 6, an important one, जरा गौर से सुनिएगा इसे। फॉर अ वेक्टर -6i hat plus 6j hat, what is the value of phi? Dear students, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट करनी है, we are not asked to calculate the value of the theta, we have been advised to calculate the value of the phi. So इसे सॉल्व कैसे करना है जरा देखिएगा। The vector which is given is
-6 i हैड प्लस j हैड। इट मीन्स कि ये जो i हैड के साथ लिखा हुआ है ये आपका x कंपोनेंट है। सो rx इज -6, द मैग्नीट्यूड ऑफ द rx इज -6 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ry इज 6 बिकॉज इट इज रिटन विद j हैड। In your book, it is written that the formula to calculate the phi is tangent inverse of ry over rx, यानी ऊपर y कंपोनेंट है, नीचे x कंपोनेंट है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहां पर आपने देखनी भी है, सुननी भी है और समझनी भी है, वो ये कि जब भी phi की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला तो यही यूज होता है, विच इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ ry ओवर rx। लेकिन ry और rx की वैल्यू को पुट करते हुए आपने इनके साइंस को इग्नोर करना है, यानी rx की वैल्यू चाहे -6 है, लेकिन जब आप यहां पर पुट करेंगे rx की वैल्यू तो इट विल नॉट बी रिटन एज -6, इट विल बी रिटन एज 6। सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 6 over 6 is equal to tangent inverse of 1, which will become as 45. So the right answer of the phi is 45 degree. Dear students, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्लियर करता चलूँ एंड आई होप कि इसके बाद इसके टाइप की अगर कोई एमसीक्यू आपके पास बोर्ड के पेपर में या किसी भी पेपर में आती है तो यू गाइस विल बी इजीली इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन टू सॉल्व दैट। वो क्या, याद रखिएगा कि अगर किसी भी वेक्टर के अंदर इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट यानी rx और ry की मैग्नीट्यूड सेम हो, इंपॉर्टेंट थिंग मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड सेम हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन, मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसे यहां पर वैल्यू अगर नंबर्स को देखा जाए वैल्यू 6 है, यहां पर भी वैल्यू 6 है, इन दैट पर्टिकुलर केस हमेशा phi की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 45। अगेन मैं क्लियर करता चलूं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल थीटा, मैं बात कर रहा हूं phi की। अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू सेम हो तो इस केस में phi की वैल्यू 45 आएगी। लेट्स मूव वन स्टेप फर्दर, आगे एक और स्टेप बढ़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ऐसे हो कि आपके पास बोर्ड में यही एमसीक्यू आए या किसी और टाइप की ऐसी एमसीक्यू आ जाए, लेकिन पूछा phi ना जाए बल्कि थीटा पूछा जाए। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों ने बुक में पढ़ा भी हुआ है, डिस्कशन भी हुई है कि एंगल थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि जो आपका वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है, वो किस क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट का फैसला किया जाएगा, उसके बाद एंगल थीटा कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए कुछ जेनेरिक रूल्स जो हैं वो मैंने सामने लिख दिए आपके, विच आर आल्सो रिटन इन योर बुक एज वेल। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर याद रखिएगा rx पॉजिटिव और ry पॉजिटिव होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ द थीटा विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द phi, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ ry ओवर rx से जो भी वैल्यू phi की आएगी इट विल ऑल्सो बी द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी अगर यही वेक्टर किसी सूरत 6i प्लस 6j लिखा होता, माइनस के बगैर लिखा होता, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होना था कि phi की वैल्यू 45 आनी थी और वही phi की वैल्यू थीटा बन जानी थी बिकॉज क्वाड्रेंट फर्स्ट था। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई आपका रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा हो, इन दैट पर्टिकुलर केस rx नेगेटिव होता है, ry पॉजिटिव होता है, और इस केस में थीटा कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू यूज दिस फार्मूला विच इज 180 माइनस phi। सर ये phi कौन सा है? ये phi इसी फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट करना है, विच इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ry ओवर rx बाय इग्नोरिंग द साइंस ऑफ ry एंड rx। In third quadrant, Rx is negative, Ry is also negative, and the theta will be calculated by 180 plus phi. And talking about fourth quadrant, Rx positive है, Ry negative है, and in that particular case, the value of the theta will be equal to 360 minus phi. अब क्यों ना इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बट अब कैलकुलेट वैल्यू phi की ना की जाए, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो phi की वैल्यू तो हम देख चुके हैं कि 45 आ चुकी है, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ phi ही नहीं थीटा भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। phi की वैल्यू 45 हम कैलकुलेट कर चुके हैं,
अगर हमें कहा जाए कि थीटा इस एमसीक्यू के लिए कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो वेक्टर आपके पास दिया गया है ये कौन से कोऑर्डिनेट में। अगर आप गौर से देखें तो rx -6 है और ry पॉजिटिव 6 है, विच मीन्स दैट rx नेगेटिव है और ry पॉजिटिव है। अगर rx नेगेटिव और ry पॉजिटिव हो तो वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट में है? ये सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा? It will be calculated by theta is equal to 180 minus 5. We have calculated the value of the phi and that is 45. So the value of the theta will be 180 minus 45. Whatever the value is, I think it's 135 degree. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, MCQ number 7. Scalar product is a type of vector multiplication in which अब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर्स की प्रोडक्ट्स हैं। वी नो दैट कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और आंसर स्केलर आता है, और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर आता है। सो चाहे स्केलर प्रोडक्ट है चाहे वेक्टर प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई होने वाली चीजें हैं वो दोनों ही वेक्टर्स हैं। तो इन स्केलर प्रोडक्ट द रिजल्टेंट इज स्केलर। रिजल्टेंट मींस जो रिजल्ट है आपका, जो आंसर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर, जो आंसर आपका, बिकॉज आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है, आंसर स्केलर जरूर है लेकिन जो मल्टीप्लाई होने वाली दोनों चीजें हैं वो दोनों की दोनों ही वेक्टर्स हैं। इट मींस ऑप्शन सी विल बी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर। एमसीक्यू नंबर 8. The total change in momentum of an isolated system. Law of conservation of linear momentum. We know that total momentum of the isolated system is constant. अगर total momentum isolated system का constant है, it means कि momentum में कोई change नहीं आ रहा। अगर momentum में कोई change नहीं आ रहा तो जितना momentum, let's suppose we take an example, क्लायन की एग्जांपल है दो बॉडीज की। इट मींस जितना मोमेंटम क्लायन से पहले है उतना ही मोमेंटम क्लायन के बाद भी है। अगर पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इट मींस चेंज नहीं आ रहा, और अगर चेंज नहीं आ रहा तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0। बोर्ड में ये एमसीक्यू दोनों तरीकों से आई हुई है। अगर आए कि जी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो याद रखिएगा इसका आंसर कांस्टेंट है, और अगर आए कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम तो याद रखिएगा इसका आंसर 0 है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। आपकी बुक का ये न्यूमेरिकल भी है। लेट्स सॉल्व द सिंपल मैथमेटिक्स। इट इज गिवन दैट द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स रेंज। The formula of the height which is given in your book of a projectile is vi square sin square theta over 2g. The formula of the range is vi square sin 2 theta over g. अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व करें तो ये यहाँ पे कट जाएगा, इसी तरह g की वैल्यू भी यहाँ पे कट जाएगी। It will become as sin square theta over 2 is equal to sin 2 theta. So it will become sin 2 theta. Sin square theta over 2 is equal to sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. It is a simple mathematics function. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. अब क्या होगा कि एक साइन इसके साथ कट जाएगा और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos को मैं यहाँ पर ले आया। It will become as sin is equal to 4 cos theta, और cos जब यहां पर आकर डिवाइड होगा तो it will become sin theta over cos theta is equal to 4. We know that sin theta over cos theta is equal to tangent theta. So tangent theta will be equal to 4, and to calculate the value of theta, ये tangent इधर आकर tangent inverse बन जाएगा, and tangent inverse of 4 is equal to 76. It means 76 डिग्री वो एंगल है जहां पर जाकर हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दोनों एक दूसरे के इक्वल। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स जिसकी वजह से किया गया वर्क डन
इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड हो, यानी कि उसकी वजह से पैदा होने वाली फील्ड के अंदर अगर वर्क किया जाए तो वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे। आपकी बुक में एक साइड इंफॉर्मेशन में ये टेबल भी दिया गया है। फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो फिर एक ही फोर्स यहां पे जो बचती है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स में किया गया वर्क अलॉन्ग विद मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल, इनके अंदर किया गया, इनकी फील्ड्स के अंदर किया गया वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एमसीक्यू नंबर 11 पूछा ये गया है कि 1 डाइन इज इक्वल टू, बोर्ड में भी एमसीक्यू आई हुई है, 2 के बुक से थोड़ा सा हटके है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में जरूर रखिएगा। याद रखिएगा ये जो डाइन है इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी ये ऐसा यूनिट नहीं है। यूनिट ये फोर्स का ही है लेकिन ये फोर्स का सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट है। सो याद रखिएगा कि 1 डाइन 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन के इक्वल है फॉर एमसीक्यूज। अगर आपको एमसीक्यूज के लिए आए तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि इनके आपस में कन्वर्जन किस तरह है। बहरहाल थोड़ा सिंपल मैथ मैंने यहां पर भी सॉल्व किया है जस्ट इन केस कि आप को अगर पता चलाना चाहते हैं कि इसका प्रूव कैसे है। तो वी नो दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू m। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास का यूनिट किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि डाइन फोर्स का सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट है, इसका मतलब है कि आपको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है कि 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और वो है 1000 ग्राम, और मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो इट विल बिकम एज 1000 ग्राम एंड इट विल बिकम एज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1000 और 100 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब फोर्स ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में आ जाएगी तो अब वो डाइन बन जाएगी। इसका मतलब है इसकी जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सो अगर हम यहां से 1 डाइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 10⁵ जब उधर जाकर डिवाइड होगा तो इट विल बिकम एज 10⁻⁻5 न्यूटन। सो 1 डाइन फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये भी याद रखिएगा कि 1 डाइन वो फोर्स है जो 1 ग्राम बॉडी के अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। यानी मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने किलोग्राम को ग्राम कर दिया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ रहा हूं। एमसीक्यू नंबर 12 विच इज द लास्ट एमसीक्यू, दैट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ बायोमास इज। आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन है, वहां पे लिखा भी हुआ है कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ बायोमास इज सन। एक जर्नल सी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपकी बुक पे जो एप्लीकेबल है, ताकि बोर्ड में अगर कोई एमसीक्यू आए तो आप उसे कैसे सॉल्व करें। एक लाइट से अंदाज में हम क्लास में भी डिस्कस करते होते हैं। मैं बताता ये होता हूं कि जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स अर्थ है, जो आपका जो टेबल दिया हुआ है, याद रखने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। जियोथर्मल, जियो का मतलब ये अर्थ है, जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स अर्थ है। टाइड्स भी आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है मून है। उसके अलावा टेबल पे बाकी जितनी लिखी हुई हैं उन सब का जो सोर्स है वो सन है। तो चूंकि ये बायोमास इनके अलावा था तो एक टिपिकल इंफॉर्मेशन के लिए भी याद रखने के लिए कि इसका जो सोर्स होगा वो सन। अब बढ़े हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहले शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, विच इज राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। सो अगर हम प्रेशर की डायमेंशन बनाना चाह रहे हैं तो वी मस्ट नीड टू नो द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एरिया।
क्लास में भी जब हम डिस्कस करते हैं तो हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादातर जो क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं उनमें फोर्स आती है, इसलिए आप कोशिश करें कि फोर्स की डायमेंशन को अच्छी तरह याद कर लें। और अगर आपने फोर्स की डायमेंशन को याद करना है या बनाना है तो वो फोर्स की डायमेंशन F इज इक्वल टू ma से बनेगी, विच इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और जो फोर्स की डायमेंशन इस फार्मूले से बनती है वो है mlt-2। अगर आप बनाने की भी कोशिश करें तो फोर्स की डायमेंशन बनाने के लिए मास की डायमेंशन कैपिटल M और एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2, सो जो ओवरऑल डायमेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी mlt-2, और यही डायमेंशन मैंने यहां पर भी लिखी। एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर की डायमेंशन कैपिटल L, तो ओवरऑल बन जाएगी L स्क्वायर। सो mlt-2 डिवाइडेड बाय L पावर 2। जब ये ऊपर जाएगा तो 1-2 और ओवरऑल जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी ml-1t-2। सो इट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। Next is the dimension of density. The formula of the density is mass per unit volume. So अगर हम density की dimension बनाना चाहते हैं तो we must need to know the dimensions of mass and volume. Sorry अगर मैं velocity कह गया इसे, mass and volume. mass की जो dimensions हैं वो कैपिटल M है और वॉल्यूम की जो dimension है वो कैपिटल L क्यूब है। अब बढ़ते हैं density की dimensions की तरफ। We know that the formula of the density is mass per unit volume. So अगर हम density की dimensions बनाना चाहते हैं तो we must know the dimensions of mass and volume. mass की dimension कैपिटल है, volume unit मीटर क्यूब, मीटर की dimension कैपिटल L, तो कैपिटल L रेज टू पावर 3 आ जाएगा और ओवरऑल जो dimension बन जाएगी वो आ जाएगी ml-3। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। A boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse window. List the possible energy changes. एक बच्चा गुलेल की मदद से एक पत्थर फेंकता है जो जाके ग्रीन हाउस विंडो की को स्मैश कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो टोटल एनर्जी चेंजेस पॉसिबल हैं वो काइंडली बताएं। जब एक बॉय कैटापल्ट के जरिए एक स्टोन को फेंकता है तो सबसे पहले उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब वो स्टोन मूव करता हुआ जाता है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन बिकॉज स्टोन इज मूविंग। जब वो जाकर स्टोन उस ग्रीन हाउस विंडो के साथ स्ट्राइक करता है, टकराता है, जिससे विंडो ब्रेक भी हो जाती है, तो कुछ एनर्जी चेंजेस जो वहां पर आती हैं उनमें एक तो वर्क डन टू ब्रेक द विंडो, उसके साथ लाइट से साउंड भी क्रिएट होगी, एक लाइट से हीट भी क्रिएट होगी बिकॉज दो बॉडीज का इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्रोकन पीसेस ऑफ विंडो होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी। जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी तो उनकी अपनी भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। जो लास्ट पॉसिबल चेंज है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ विंडो। Short question number 3. Calculate the work done in kilojoules in lifting a mass of 10 kg at a steady velocity through a vertical height of 10 meter. जब किसी बॉडी पे वर्क किया जाता है और उसे किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेकर आया जाता है तो वही वर्क डन उस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी कैन डू सो बाय कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो वही वर्क भी कहलाएगा। एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. The value of the mass which is given is 10 kg, value of the g is 9.8, value of the height is 10. जब ये सारे मल्टीप्लाई होंगे the answer will be 980 joule. लेकिन उसने कहा है कि you have to calculate this work in kilojoules. ये जो आंसर आया हमारे पास दैट इज इन जॉल्स। किलो जॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए दिस आंसर विल बी डिवाइडेड बाय 1000 और ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो 0.98 किलो जॉल आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
नैनो सेकंड्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक साल के अंदर टोटल, इस टाइम स्पैन के अंदर टोटल सेकंड्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम टोटल सेकंड्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम नैनो सेकंड्स के पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। वो क्या है उसे बाद में देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, वी ऑल नो। इन 365 डेज को हमने अब सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसे 24 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये आवर्स बन जाए, फिर मैंने इसे 60 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये मिनट्स बन जाए, और उसके बाद मैंने इसे फिर 60 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये सेकंड्स बन जाए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट अ वैल्यू विच इज 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकंड्स। इट मींस एक साल के अंदर इतने सेकंड्स। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एक साल के अंदर कितने नैनो सेकंड्स हैं। सो वी मस्ट कन्वर्ट दिस वैल्यू विच इज इन सेकंड्स इनटू नैनो सेकंड्स। उसे कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमें पता है कि जो नैनो वैल्यू है वो 10⁻⁹ है। तो क्यों ना 10⁻⁹ किसी तरह यहां पे लेके आया जाए। जब 10⁻⁹ आ जाएगा तो हम उसे खुद ब खुद ही नैनो लिख लेंगे। लेकिन 10⁻⁹ लाने के लिए मैं इसे 10⁻+9 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओवरऑल इंपैक्ट विल बी सेम, 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ये ओवरऑल खत्म हो जाएगा और वैल्यू दोबारा फिर वही आ जाएगी। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ये 3.1536 10⁻7 एंड 10⁻9 दोनों मिलके ऐड होकर 10⁻16 आ जाएंगे। लेकिन ये जो 10⁻⁻9 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम नैनो लिख सकते हैं। सो ओवरऑल एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर जो टोटल सेकंड्स बनेंगे, दिस विल बी 3.1536 इंटू 10⁻16 नैनो सेकंड्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट of gravitational constant capital G in the formula F is equal to capital G m1 m2 over r square. We know the formula of the Newton's law for gravitation is capital G m1 m2 over d square भी लिखा जा सकता है, r square भी लिखा जा सकता है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में r square लिखा हुआ है तो आप उसके साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल G का अगर फॉर्मूला यहां से हम सेपरेट करें तो दैट विल बी एफ डी स्क्वायर ओवर m1 m2। अगर यहां से हम इसके यूनिट्स निकालने की कोशिश करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस जो r अभी हमने डिस्कस भी किया, इसका यूनिट मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। सो ओवरऑल जो G कैपिटल G है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स डायमेंशंस। अगर हमने कैपिटल G की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है तो डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूटन, मीटर और केजी तीनों की डायमेंशन आनी चाहिए। अभी बात की हमने थोड़ी देर पहले कि न्यूटन विच इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स की जो डायमेंशन है दैट इज mlt-2। मीटर जिसकी अपनी डायमेंशन कैपिटल L है, तो मीटर स्क्वायर है इसलिए कैपिटल L स्क्वायर आ जाएगा, और केजी की डायमेंशन कैपिटल M तो केजी स्क्वायर है M स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसे एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे 1 पावर ये 2 ऊपर जाकर -2 होगा, तो ओवरऑल जो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी वो m-1 L3 और t-2 आ जाएगी। So this is the unit of capital G and this is basically the dimension of capital G. Moving towards next short question. Short question number 6. Can the dot product of two vectors be equal to the product of their magnitude? The formula of the dot product of two vectors is A dot B is equal to AB cos theta. Let's suppose A and B both vectors are parallel to each other, and for parallel vectors we know that theta is equal to 0. अगर हम ये 0 डिग्री यहां पर पुट करें तो cos of 0 का आंसर 1 आता है, वो 1 खत्म हो जाएगा, तो A dot B will be equal to AB, which is the product of the magnitudes of two vectors. It means the dot product of two vectors will be equal to the product of magnitudes of two vectors when both vectors are parallel to each other.
सो इट मीन्स इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस और बड़ा सिंपल सा हो गया कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल तब होगा जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट, नेम द 3 different conditions that could make A1 क्रॉस A2 is equal to null vector। दो वेक्टर्स A1 और A2 इनके वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर नल वेक्टर है। वो कहता है कि 3 कंडीशंस बताएं जिन 3 कंडीशंस के अंदर ये पॉसिबल। द फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू A1 A2 साइन थीटा एन हैट। यहां A1 और A2 इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड। अगर पहला वेक्टर A1 नल वेक्टर हो और अगर यहां पर नल वेक्टर आ जाए तो ये नल वेक्टर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल जो आंसर है वो एक नल वेक्टर आ जाएगा। इट मींस पहली कंडीशन ये बनी कि अगर इन दोनों में से पहला वेक्टर नल वेक्टर हुआ तो नल वेक्टर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आंसर को नल वेक्टर करेगा। सो द फर्स्ट कंडीशन इज A1 इज नल वेक्टर। व्हाट कैन बी द सेकंड कंडीशन? अगर A1 की बजाय A2 वेक्टर नल वेक्टर हो और ये नल वेक्टर जब यहां पर आएगा तो ये नल वेक्टर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके इसे नल वेक्टर बना देगा। तो सेकंड कंडीशन इज इफ A2 इज इक्वल टू नल वेक्टर। अगर A1 और A2 दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो पैरेलल होने, अभी हमने बात की कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो साइन 0 का आंसर 0 है। वो 0 जब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल जो आंसर है वो नल वेक्टर आ जाएगा। इट मींस तीसरी कंडीशन ये हुई कि A1 और A2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट कैन बी ट्रू फॉर A1 एंड A2 अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हैं, क्योंकि एंटी पैरेलल के केस में एंगल थीटा 180 आ जाता है और साइन 180 का आंसर भी 0 ही है जो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके इस आंसर को नल वेक्टर कर देगा। सो 3 कंडीशंस उसने कही थी, हमने 4 लिख दी हैं। आइदर A1 इज नल वेक्टर, आइदर A2 इज नल वेक्टर, A1 और A2 दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों या A1 और A2 दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों। नेक्स्ट, short question number 8. To get the sum of 2 vectors equal to a null vector, what are the conditions? वो कहता है दो वेक्टर्स को ऐड करें और इसका आंसर एक नल वेक्टर आए। कंडीशंस क्या है? जो उसने कहा वही मैं लिख चुका हूं। A प्लस बी, सपोज कर रहा हूं जो दो वेक्टर्स हैं वो A और B हैं। वो कह रहा है कि A और B दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो इसका आंसर नल वेक्टर है। इट मींस ये B जो यहां पे वेक्टर प्लस हो रहा है अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। इट मींस इन दोनों का सम नल वेक्टर के इक्वल तब आएगा जब ये कंडीशन पूरी हो। A वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव B। अब बहुत बखूबी आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट मींस दैट A वेक्टर B वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो या B वेक्टर A वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों की मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे के इक्वल हो, लेकिन वेक्टर A और वेक्टर B दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हो। सो अगर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों मैग्नीट्यूड्स में एक दूसरे के इक्वल हैं और डायरेक्शंस में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो एक नल वेक्टर आएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 20-gram ball hits the wall of a squash court with a constant force of 50 Newton. If the time of impact of the force is 0.5 second, find the impulse. एक सिंपल न्यूमेरिकल मैथ दे दिया गया 20 ग्राम, फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन, टाइम 0.5 सेकेंड। हमें इंपल्स कैलकुलेट करने का कहा गया। द फॉर्मूला ऑफ द इंपल्स इज F multiplied by T. When a large force acts on a body for very short interval of time, then the product of force and time is called as impulse. मैंने मैथ्स को इसीलिए केजी में कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उस मैथ्स की वैल्यू की जरूरत ही नहीं। वी ओनली नीड फोर्स एंड टाइम। फोर्स की वैल्यू 50 और टाइम की वैल्यू 0.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 25, और इंपल्स का जो यूनिट है वो वही है जो मोमेंटम का है, विच इज न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बोर्ड में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ और काफी दफा आ चुका हुआ है। इसे सॉल्व करने के लिए रेंज के फॉर्मूले की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द रेंज विच इज गिवन इन योर बुक इज vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। अब रेंज मैक्सिमम तब आएगी जब इस फैक्टर का आंसर विच इज sin 2 थीटा वो मैक्सिमम होगा। अब साइन के अंदर जो सा मर्जी एंगल रखें, इस साइन के एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1। तो मैंने क्या किया है कि इस मैक्सिमम वैल्यू की जगह मैंने 1 लिख दिया। इट मींस रेंज मैक्सिमम तब आ सकती है, ये रेंज मैक्सिमम तब आ सकती है जब sin 2 थीटा का आंसर 1 होगा। सिर्फ यही वो सपोजिशन है जिससे हम इजीली सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज 90 डिग्री। 2 यहां पर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा तो थीटा विल बी इक्वल टू 45। इट मींस 45 वो एंगल है जिसे अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो आंसर ऑफ द रेंज विल बी मैक्सिमम। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, थीटा की जगह 45 पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 और साइन 90 का आंसर 1 आ जाएगा जो कि मैक्सिमम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ सो गिव एन एग्जांपल। सो आंसर इस क्वेश्चन का यस है कि जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू साथ में कांस्टेंट रहे। इसके लिए एक टिपिकल सी एग्जांपल मैंने ली है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई बॉडी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज जी, व्हिच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में चूंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सो द वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड। वेलोसिटी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है। अगर यही बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें तो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ बॉडी जाती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई है, यानी कि रिवर्स होगी। पहले डाउनवर्ड थी, अब अपवर्ड होगी। लेकिन अब भी जो कि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी ही है, तो अब भी इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो जी ही होगा। दो द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, साइन ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी चेंज्ड, वैल्यू का साइन चेंज हुआ है लेकिन ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है वो दोनों केसेस में ही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रहेगा। इट मींस वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया है लेकिन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी कैन बी मेजर्ड फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम टिपिकल आंसर की तरफ बढ़ें, दो इसकी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ आंसर की तरफ बढ़ें तो बुक की लाइन भी है और काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आपको उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगी। इट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहते हैं तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द शेडेड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो टिपिकली अगर हम सिर्फ आंसर को ही डिस्कस करना चाहें तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालनी पड़ेगी, और अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टोटल शेडेड एरिया निकालना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं एक चीज यहां पर कैलकुलेट कर भी रहा हूं ताकि एक जेनेरिक आइडिया भी हो जाए। शेडेड एरिया एक लेंथी पॉइंट ऑफ व्यू से है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में चूंकि उसकी ऐसी जरूरत नहीं है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सेलरेशन ओनली। अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाल ली जाए तो आप उससे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
पॉइंट ये है कि किसी भी ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कैसे की जाती है, उसके लिए मैंने एक टिपिकल एक जर्नल वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने बना भी दिया है, जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है। इफ यू वांट टू नो कि स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो y एक्सिस के दो टिपिकल पॉइंट्स लिए जाएं और इन दो टिपिकल पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे दो टिपिकल पॉइंट्स लिए जाएं और फिर y एक्सिस के दोनों पॉइंट्स की डिफरेंस उसे डिवाइड कर दिया जाए x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस से, तो वी कैन कैलकुलेट द स्लोप। मुझे लग रहा है जैसे आपको ये बात समझ नहीं आई, इसलिए मैंने नीचे फार्मूला भी लिख दी। लेट्स सपोज ये वो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें मैंने दो टिपिकल पॉइंट्स y एक्सिस पे लिए। y एक्सिस पे जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट वो ये है। अब आपको आइडिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चूंकि y एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो ये दोनों वैल्यूज वेलोसिटी की होंगी। इसे मैंने कह दिया ये v2 है और इसे मैंने कह दिया ये v1। इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने x एक्सिस पे भी दो पॉइंट्स ले लिए हैं, v1 के कॉरस्पॉन्डिंग t1 और v2 के कॉरस्पॉन्डिंग t2। अब क्या करें आप, इन y एक्सिस के दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस ले लें, v2 माइनस v1, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस के दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस ले लें, t2 माइनस t1, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। So slope will be equal to v2 minus v1 over t2 minus t1. v2 minus v1 it is the change of velocity and t2 minus t1 it is the change in time. और जब भी चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम से डिवाइड करते हैं तो वी नो कि हमारे पास क्या आता है, एक्सेलेरेशन। इट मींस अगर हम एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वी मस्ट नीड टू कैलकुलेट द स्लोप। In the same way, we can prove about the distance as well, that is written in your book as well, but that is time consuming और इस particular stage पे हम इतनी डिटेल में इसे डिस्कस नहीं कर सकते। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, when a body is dropped from a height 4 meter, calculate its velocity just before hitting the ground. जमीन पर टकराने से बिल्कुल पहले जो इसकी वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करें। जब ये बॉडी 4 मीटर की हाइट पर होगी तो इसके पास जो कंप्लीट एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड वी नो दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ को हिट करने लगेगी तो इसके पास जो सारी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। It means loss in potential energy which is mgh and gain in kinetic energy which is half mv square। दो फार्मूला mgh1 माइनस h2 और इधर हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर लगता है, लेकिन चूंकि जमीन को टकराने से बिल्कुल पहले वाला है इसलिए ये जेनेरिक फार्मूला भी चल सकता है। मैस दोनों साइड्स पर कट जाएगा तो gh विल बी इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो 2 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच जाएगा 2gh। अगर हमने सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी अंडर रूट 2gh। द वैल्यू ऑफ द g इज 9.8 और जो हाइट उसने दी है वो 4 है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लें, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई होप कि इसकी वैल्यू शायद 8.85 मीटर पर सेकेंड ही है। सो इट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। विद दिस आई विल बी कंक्लूडिंग। इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में जहां पर सारे लोग एक डेस्परेट सिचुएशन में अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।